Let's do sum number 3. Now sum number 3 is an exam sum. The budget manager of Progressive Electrical Limited is preparing a flexible budget for the accounting year commencing on 1st April 1995. The company produces one product, a component KP. Direct material cost 7 per unit. Direct labor averages 2.50 per hour, and it requires 1.6 hours to produce 1 unit of KP. Salesmen are paid a commission of 1 per unit sold. Fixed selling and administration expenses amounted to rupees 85,000 per year. Manufacturing overheads under specified conditions of volume have been estimated as follows. For 1,20,000 units and 1,50,000 units. Okay. Indirect material, indirect labor, inspection, maintenance, supervision, depreciation, engineering services. Normal capacity of production of a company is 1,25,000 units, where they are saying us to prepare a budget of 1,40,000 units. They want a budget of how much? At 1,40,000 units. Correct? Yes, sir. Okay, they want a budget of 1,40,000 units. So, particulars rupees and rupees per unit. So, okay. Okay. Now, see here data is given more than one level, and upper mein data was given only at one level. You can, I don't know whether you have understood the difference or not. Sir, when data was given at one level, the question was telling us what is variable, what is fixed, and what is semi-variable. Am I correct? Yes, sir. But here, the data is absolute silent with respect to variable, semi-variable, or fixed. They did not tell us. So when data is given for more than one level, frankly speaking, you have to understand okay, what is variable, what is semi-variable, and what is fixed. So in the paragraph, it is very easy for us to understand what is variable, what is semi-variable, and what is fixed. But in this table, I will tell you the most difficult part. The most difficult part is fixed. Depreciation of plant and equipment and engineering services. They are fixed. I am very clear. I want to find what is variable and what is semi-variable. I So have what? helped, I have helped you with the fixed depreciation of plant and equipment and engineering, which is very difficult to understand. I have helped you there. They are fixed. Yes, please. Sir, how become it is fixed, sir? क्या बोला? हाँ, मैंने ये कैसे रिकॉग्नाइज किया, जरा चेक कीजिए, उनका अमाउंट सेम है, Same values, yes, sir. इसलिए मुझे समझ गया ये फिक्स्ड है. टोटल वैल्यू इज कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड. तो ये कभी भी सर डिफर नहीं हो सकता. इट्स ऑलवेज रिमेन सेम. क्या? ये कभी भी डिफर नहीं हो सकता सर. चेंज नहीं हो सकता है. हाँ, क्योंकि फिक्स्ड है ना, तभी तो अभी आपको ये ढूंढ निकालना है बाकी के में से 1 2 3 4, ये 4 में से वेरिएबल कौन सा है और सेमी वेरिएबल कौन सा है, वो अभी आप ढूंढ के दो. इजी वाला आपके ऊपर छोड़ा है, डिफिकल्ट वाला मैंने ढूंढ के दिया है.
इनडायरेक्ट मटेरियल्स वेरिएबल है सर. हाँ, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मटेरियल्स वेरिएबल है. ओके ओके. इनडायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल है सर. ओके. या सिन्हा जी, बोलो बोलो, आप कहाँ रह गए? सर इंस्पेक्शन जो है सेमी वेरिएबल है, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस. इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल है. ओके. और व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर? वेरिएबल ही होना चाहिए सर, बट बिहाइंड द लॉजिक मैं अंडरस्टैंड नहीं हूँ अभी भी. ओके ओके. एंड व्हाट अबाउट सुपरविजन? सुपरविजन इज ऑल्सो सेमी वेरिएबल सर. ओके. No, supervision is variable, sir. Only variable. ओके. तो एज पर सिन्हा सर जी, उन्होंने उनका लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं, वो बोलते हैं सर लॉजिकली मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल है, और सुपरविजन वेरिएबल है. एज पर माधवी, यस, indirect material indirect labor is variable. What about others? अदर्स आल्सो वेरिएबल होना चाहिए सर. एज पर यूनिट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो. हाँ, तो when you will do, करो और बताओ. सिन्हा जी, I hope आपने सुना what Madhvi said. She said how to get the logic. Yes, sir. Yeah, yeah. You can try. No problem. This is what classes is for, beta. You have to experiment here. And you have to try in the class, no matter whether it is right or wrong. ये तो बजट इज वेरी इजी. बजट में कुछ खास दम नहीं है. Inspection is variable, sir. Okay, no problem. Inspection is variable. As per Madhvi madam, indirect material, indirect labor and inspection, ये तीनों variable है. Okay.
मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल है सर. Okay, maintenance is semi variable. Supervision is also semi variable है सर. Okay, चलो ठीक है. सिन्हा सर जी, आपको कुछ चेंजेस करने हैं आपके आंसर में क्या? अभी मैं नहीं. एक्सप्लेनेशन. ओके No, ओके ओके, मैं मेरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ. हम लोग ने वेरिएबल के लिए क्या देखा सर? वेरिएबल में पर यूनिट सेम होना चाहिए और सेमी वेरिएबल के लिए नाइदर पर यूनिट नॉर टोटल वैल्यू इज सेम. दोनों भी सेम नहीं होता. तो इन दैट केस कैसे होगा? प्लीज पे अटेंशन नाउ. लेट्स सी इनडायरेक्ट मटेरियल. अब इफ यू रिमेंबर, वेरिएबल के लिए मैं क्या करता था? 1,20,000 के लिए अगर 264 है तो 1,50,000 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या 330 आ रहा है आंसर? 150 into 264 divided by 120. So the answer is yes, it is coming. तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल. सिमिलरली अभी मैं चेक करता हूं, अभी 150 कर रहा हूं. 150 तो 150 into 150 divided by 120. What answer I am getting? 187.5. And yes, here it is 187.5. Yani this is also variable. Let's do for inspection. This is 90. So 150 into 90 divided by 120. 112.5. Sir, ये भी variable है. Now let us do for maintenance. 84. 84 into 150 by 120. तो 105. सर 105 नहीं है, 102 है. तो ये सेम नहीं है, यानी पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल वैल्यू भी सेम नहीं है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है. और 198 के लिए देखेंगे अभी. 198 into 150 divided by 120. 247,500. सर यहाँ पे 234 है, ये भी सेम नहीं है, मतलब ये भी सेमी वेरिएबल है. माधवी मैडम, एब्सोल्युटली करेक्ट. सिन्हा सर जी, आई होप आपको आया रहेगा अभी. yes. कुछ डाउट है तो पूछो बेटा, कवर अप करो. No, sir. तो मैंने जो ऊपर के सम्स में वेरिएबल ओवरहेड ढूंढने का जो तरीका है वो अप्लाई किया. अगर वो आंसर मैच किया तो वो वेरिएबल है, अगर वो मैच नहीं किया तो मैं सेमी वेरिएबल बोल दूंगा, क्योंकि पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल वैल्यू भी सेम नहीं है. सर आपको पूरी तरह से समझा है सर? Yes. ग्रेट. माधवी मैडम ने तो वो लॉजिक अप्लाई किया था, इसलिए मुझे उनको पूछने की जरूरत नहीं है. शैल आई प्रोसीड नाउ? Yes sir. अभी हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट शीट बनाएंगे फॉर 1,40,000 यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो भी पर यूनिट है वो लिख दीजिए 7. तो 1,40,000 इंटू 7 कितना होता है? 9,80,000. करेक्ट है? करेक्ट है? हेलो
Yes, sir. 980. डायरेक्ट लेबर से डायरेक्ट लेबर में दिया नहीं है, पर यूनिट नहीं दिया है, तो मैं पर यूनिट ढूंढ लेता हूँ सर। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट कैसे आता है सर? रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। मुझे दिया है रेट इज हाउ मच, 2.5 रुपीज पर आवर, और हाउ मेनी आवर्स, 1.6, 2.5 into 1.6, that is 4. That is 4, correct? Yes, sir. 4. So 4 rupees per unit. So 1,40,000 into 4. Correct? Yes, sir. Okay. Abhi, salesman paid a commission. Salesman cost 1 rupee per unit, and we are selling 1,40,000 units. So can I say 1,40,000 rupees? Now we go ahead next. Salesman के बाद fixed selling and administration amount. Selling and admin cost. Fixed is how much? 85,000. 85,000 divided by 1,40,000. तो मुझे मिल गया 0.61. Okay. Then अभी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल सर, इनडायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल, वेरिएबल है तो उसका पर यूनिट ढूंढ निकालो। 2,64,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, पर यूनिट कितना आया सर? मुझे 2.2 आया। हेलो, Yes, sir. Right. इंटू 1,40,000, तो मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर 1,40,000 यूनिट्स इज 3,08,000। इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल है, तो पर यूनिट ढूंढ निकालो। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, दैट कम्स टू 1.25। 1.25 into 1,40,000, that comes to 1,75,000। Yes. अभी इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इंस्पेक्शन, inspection is 90,000 divided by 1,20,000, that comes to 0.75 into 1,40,000, that comes to 1,05,000, that comes to 1,05,000। इंस्पेक्शन हो गया। अभी मेंटेनेंस सर, मेंटेनेंस में वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, क्योंकि मेंटेनेंस इज सेमी वेरिएबल, यस और नो? Yes, sir. तो अभी नाउ द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो how much is variable and how much is fixed. When data was given for one level, the question was very clear. Okay, how much was fixed and how much was variable. बरोबर है? But here it is not given. I will find out later on. I keep it on hold. Then there is supervision also. Supervision variable
and fixed. Then depreciation is fixed 90,000. Engineering services, that is how much? 94,000. तो मुझे मिल जाएगा total cost. Total cost I don't know, we'll have to find out later on. But my format is done. 90,000 divided by 1,40,000. तो ये हो गया 0.64 and 94,000 divided by 1,40,000, that is 0.67. Done. Now I have only kept maintenance and supervision. How to find how much is variable and how to find how much is fixed? That is semi-variable bifurcation in variable and fixed is done by sum of least square method. Sum of least square method हमेशा याद में रखना. यहाँ पे आज लिखवा के दिया है लेकिन बहुत जगह पे यूज होगा. तो जहां जहां पे आपको सेमी वेरिएबल का बाइफरकेशन करना है, द बेस्ट मेथड टू डू बाइफरकेशन इज सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर. सर सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आई विल फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. कैसे ढूंढने का? चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन यूनिट्स. तो मुझे मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. और फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढने का? फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये दो इक्वेशंस आई हैव टू यूज. सर कैसे यूज करेंगे? लेट अस डू इट इन केस ऑफ मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मैं करूंगा, सुपरविजन का आप करेंगे. प्लीज पे अटेंशन. वेरिएबल maintenance variable cost per unit. change in cost जरा कितना है जरा देखो प्लीज. 1,02,000 माइनस 84 कितना होता है बेटा? 18,000. yes or no? Yes, sir. Yeah. And how much is change in units? 150 and 120. 30,000. अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं डायरेक्टली ये नहीं करूंगा, ये करूंगा तो मुझे याद नहीं आएगा कि कैसे किए, तो माइनस दिखाओ. क्या? 1,02,000 माइनस 84,000 अपॉन 1,50,000 माइनस 1,20,000. So that comes to 18,000 divided by 30,000. 18 divided by 30 is equal to 0.6. So your maintenance variable cost per unit is 0.6. So now fixed cost is equal to total cost minus variable cost. अभी कोई भी one level लो, मैं लेता हूँ at 1,20,000 units. At 1,20,000 units, fixed cost is equal to total cost minus variable cost. Fixed cost मालूम नहीं है. Total cost कितना है at 1,20,000 units? 84 sir. 84,000 माइनस वेरिएबल मुझे मालूम है 0.6 रुपीज पर यूनिट, और ये 1,20,000 यूनिट्स के लिए है. तो 84,000 माइनस, कैन आई से 72? जरा प्लीज करके देखो. 1,20,000 इंटू 0.6, इज इट 72,000? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे मिल गया फिक्स कॉस्ट इज 12,000. Fixed cost is 12,000 and variable cost is 0.6 per unit.
So 0.6 into 1,40,000, please. 84,000. And 12,000 divided by 1,40,000, please. 0.09. अभी ऐसे ही मैं अभी सुपरविजन के लिए भी करूंगा. Correct? You got it, both of you? Yes, sir. Yes, sir. Now let's find supervision variable cost per unit. How much is change? 234 minus 1,98,000 divided by 1,50,000 minus 1,20,000. So 234,000 minus 1,98,000, that gives me 36,000 by 30,000. 36,000 divided by 30,000, the answer is 1. One. Now I will do it at 1,50,000 units. Fixed cost, total cost minus variable cost. Fixed cost, total cost कितना है? 2,34,000. Variable is 1.2 into 1,50,000. So 2,34,000 minus what is 1.2 into 1,50,000? 1,80,000. 234 minus 1,80,000. मुझे आंसर आया 54,000. Am I correct? So 54,000 will be written here. Yes, sir. And I think 1.2 is the answer, na? 1.2 per unit. 1.2 into 1,40,000. So that comes to 1,68,000. 1,68,000. 54 divided by 1,40,000 is 0.39. We are done with everything. So 9,80,000 plus 5,60,000 plus 1,40,000 plus 85,000 plus 3,08,000 plus 1,75,000 plus 1,05,000 plus 84,000 plus 12,000 plus 1,68,000 plus 54,000 plus 90,000 plus 94,000. मुझे आया आंसर 28,55,000. जरा प्लीज आप लोग चेक करना. Yes, sir. 1,40,000 gives me 20.39. Is that very clear? Yes, sir. Okay. Yeah. पूरा सम समझा सिन्हा सर जी? Yes, sir. समझा है पूरा? Yes, sir. माधवी? Yes, sir. Yeah, please copy it down there. यहाँ से स्टार्ट होता है. Come on.
आपको यहाँ पे मैंने एक जगह पे 120 और यहाँ पे 1,50,000 पे किया है। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी लेवल पे करो आपको सेम आंसर आएगा। ओके ओके सर। मैंने 120 पे किया, आप 150 पे करो स्टिल आपका फिक्स कॉस्ट सेम आएगा 12,000। ओके सर। मैंने यहाँ पे 150 पे किया, आप 120 लेके देखना आपको सेम आंसर आएगा, फिक्स कॉस्ट 54,000। ओके सर। जरा चेक करो, कमॉन। यहाँ पे है 1,02,000 है और वेरिएबल कॉस्ट है 0.6, तो 1,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट इंटू 0.6 करो 90,000 आएगा और अपना टोटल कॉस्ट है 1,02,000 माइनस 90 करो कितना आया 12,000। तो आप कोई भी लेवल पे करो आपको फिक्स कॉस्ट सेम आना चाहिए, तो ही मतलब है ना बेटा। यस सर यस सर। सिमिलरली आप सुपरविजन में भी वो ट्राई कर सकते हो। दैट वाज माय इंटेंशन। क्लियर? यस सर। So this was all about flexible budget when more than one level data is given. But we'll do one more sum, but in the next session.